similar attitude, similar way of mind, who was heading the post as the Deputy Secretary and head CBSE Center for Excellence Delhi for some years, and then he was there as she was there as the Deputy Secretary of head for the Center for Excellence Panchkula also, an Assistant Director General at National Skill Development Agency, NSDA, MSDE, and the Deputy Director of the Exam and Reforms, that is the UDAN, you all might have heard of CBSE. But presently, beside all these things, trainings and Center for Excellence signifies the training. Every regional office, they have a Center of Excellence. The similar way she was working, but above all, she is a very good human, and now she is the principal of Delhi Public School Gwalior. We have a few teachers of DPS Gwalior also. I do welcome them to this forum. I think they'll be very happy to hear from their own principal also. It's a privilege for all of us, all educators from Doon Public School, as well as few educators have joined from DPS Gwalior. It's a privilege that this forum is created to something to share and something to learn from each other. So, ma'am is actually has lot of professional experience, lot of professional achievements, but still I will tell you few things which she has rendered in her past. She was the member of External Research Group of World Health Organization for development of standards of global policy for health promoting schools. She was CBSE city coordinator for 86 schools at Gwalior and Datia. At present also in the city coordinator. Chief Nodal Supervisor for Board Evaluation and Center Superintendent for CBSE Board Examination, NEET and other examinations. She is a member of CBSE Pre and Post Pre-Board Examination Helpline for students as a counselor. Commendation letter by Director CBSE for contribution in MHRD Vidya Dan project in 2019. I think so many, but still, you see, your work has to be spoken. You have been associated with so many works. These are all very, very similar, one by one things which you are connected to each other. So people should know. They know me. All my educators, they know that, sir, you are associated with these things. So it's a privilege when I announce someone like, you are doing a wonderful job and you are there in lot. And beside, let me tell you very honestly to speak, you are a very, very general harmonious person, so that people need to, people should know, teachers should know. Otherwise, that feeling should not be there, because you are always have a guideline that you are a creator of leader. So a leader must, once you speak to the educator, they should know what and who is the leader is speaking about. So anyway, that's all a small introduction from ma'am, and to her awards, to her recognitions, many things are there, but still I believe she is the only teacher, and she believes that teaching is the only profession which makes her life. And I believe, ma'am, today's session will be the most encouraging and entertaining one, when the topic we have taken up is very interesting, putting them in such a platform that they should feel relaxed. And when we have taken this topic, that relaxation techniques for educators, and nowadays it becomes little hardship, I believe. They were not knowing online, but now they were asked to do it, but now they're enjoying it. But still, there should be some relaxation techniques for these educators to cope up this during this pandemic, or maybe how they need to cope up after once the school gets open or after the lockdown. Ma'am, welcome to you on behalf of my entire team, and it's over to you now. Thanks a lot, Dr. Nayak. And now, because you have set the stage so well, it becomes my responsibility to make sure that everybody, when they leave this session after an hour, go back enriched. Yes. Even more so, see, what is most important is that we be happy teachers, because happy teachers only bring smiles in the school. Happy teachers only pass on those smiles to their children. And definitely, until and unless a child finds a school welcoming, a child finds a school happy,
they'll not get up early in the morning and look forward to coming and meeting to their teachers. So first thing first, I can of course not see all of you because most of you are off your video, but yes, try and get on the video, whatever you're wearing, whether you are just you just woke up from your afternoon nap, or you've just finished with your lunch and preparing for your dinner, or whatever. For this session, try and get your video on, right? हम सब का एक जैसा हाल है, ठीक है, सब घर के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं. डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आपको जैसे आप बैठे हो वैसे देखेगा तो कैसे महसूस करेगा. पर हाँ, ये वाला सेशन आपने अभी तक जितने भी सेशन अटेंड किए होंगे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. तो इसके लिए एक चीज जरूर कीजिए कि जहां तक पॉसिबल हो आप लोग अपना वीडियो ऑन करके और उसके साथ अपना आप जहां हैं जैसे हैं उसके साथ इस सेशन में कनेक्ट कीजिए. So I'm waiting for you all to quickly switch on. Wow, I can see many of you already very good. अब जो दूसरी चीज हम करने वाले हैं वो ये है कि आपकी सबसे बड़ी वाली जो स्माइल है वो जरा अपने चेहरों पे सजा लीजिए. वेरी नाइस. अभी से अच्छा महसूस हो रहा है ना? थम्स अप दे सकते हो, जहां जहां अच्छा लगे वहां वहां थम्स अप दे सकते हैं. परफेक्ट. अब नेक्स्ट टास्क ये है कि ये स्माइल अभी से शुरू होगी और लास्ट मिनट तक रहेगी. और मैं तो ये चाहूंगी कि ये स्माइल आप लोगों के फेस पर कुछ भी हो जाए लाइफ में हमेशा रहे. तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, सबसे बढ़िया बात यह है कि हम सब टीचर्स हैं. आप इस वक्त ये बिल्कुल भूल जाइए कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ या मैंने कुछ भी किया है. इस वक्त मैं आपके साथ एक टीचर के जैसे हूँ. डॉक्टर नायक भी आपके साथ एक टीचर के जैसे हैं, ठीक है. और आपको कैसे पता चलेगा, मतलब देखिए हर किसी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. जैसे डॉक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं करेंगे, कभी भी उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी. या फिर एक पुलिस वाले का है कि वो एक अलग तरीके का उनका एटीट्यूड होगा, उनका बोलने चालने का तरीका बिल्कुल अलग तरीके का होगा. आर्मी वालों का बिल्कुल अलग तरीका, छोटे छोटे बात. एक टीचर के वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आप कहीं बाहर गए, ठीक है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो आप किसी इंसान में देखेंगे और देखते कहेंगे ये पक्का टीचर है, ये पक्का कहीं पढ़ाता है या कहीं पढ़ाती है. वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि फटाफट चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें देखकर पक्का समझ में आ जाता है कि ये इंसान जो है डेफिनेटली टीचिंग में अपना समय बिता रहा है, टीचिंग के प्रोफेशन को इन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ बना के रखा हुआ है. तो जल्दी से लेट मी सी आप लोग क्या लिख रहे हैं. ऑब्जर्विंग, केयरिंग नेचर. अरे थोड़ा सुनो, आप लोग थोड़ा अपना खुलकर इस मोमेंट को, इस सेशन को एंजॉय करो. सीरियस बातें भूल जाओ. देखो मैं कुछ चीजें बताती हूँ. आप मॉल में गए और वहां पर एक बच्चा रो रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया उस बच्चे को देखकर अगल बगल से निकल जाएगी, बट कोई जो टीचर होगा वो तुरंत उसके पास, बेटा क्या हुआ, मामा पापा नहीं मिल रहे क्या, ठीक है. या फिर अगर कोई बच्चा वहां ऊधम करता दिखता है, सड़क में जा रहे हैं आप, शॉपकीपर पे किसी शॉप पे खड़े हैं, एक बच्चा शैतानी कर रहा है, जिद कर रहा है, उसकी माँ नहीं डांटेगी, पर वहां पर अगर कोई टीचर नामक प्राणी होगा तो वो जरूर, बेटा गलत बात, ऐसे नहीं करते, बिल्कुल ऐसे नहीं करते. टीचर्स वो होते हैं जिनका मन करता है जोर से थप्पड़ लगाने का, तो कहते हैं टीचिंग में क्या रखा है, ये तो सुबह 8 बजे जाओ, 3 बजे घर वापस आ जाओ, और तुम लोगों को गर्मी की छुट्टियां भी मिलती हैं, हमें तो गर्मी की छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं. उस वक्त मन करता है उन्हें बताने का कि हाँ, हम बताते हैं कि हमें कितनी छुट्टियां मिलती हैं और हमारी 3 बजे के बाद तक कितने बजे तक करेक्शन चलता है, कितने बजे तक हमें प्रिंसिपल्स को रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ती है, कितने बजे तक हमारे को टर्म पेपर्स डिफाइन करने होते हैं, असाइनमेंट्स बनाने होते हैं. तो इतनी सारी चीजें जब एक टीचर की लाइफ में है,
जहाँ पर उनके घर परिवार के लोग भी ग्रेजुअली इस चीज के लिए आदी हो जाते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता। अगर फैमिली के किसी फंक्शन में जाना है तो इनसे सिर्फ पूछा जा सकता है, इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये उस फंक्शन में ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि क्या पता वो उस वक्त शादी किसी फैमिली मेंबर के अटेंड करने से ज्यादा जरूरी ये समझते हैं कि कोई एक बच्चा परेशान है और उन्हें उसे काउंसिल करना है, उन्हें उस बच्चे को ये महसूस करवाना है कि नहीं, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड आई एम देयर विद यू। अब इस तरीके से अगर हम बात करें तो टीचर्स की अगर हम बात करें तो ये एक वो प्रोफेशन है जो हम सब सुनते हैं और कहते हैं जो बाकी सारे प्रोफेशंस को तैयार करता है। और जाहिर सी बात है, when we have so many responsibilities on our shoulders, definitely it adds to our stress. There are a lot of things that add to our stress. There are a lot of things that make us feel, oh my God, I really need a break. So of course we all cannot get breaks, but yes, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चीजें डिफाइन कर लें, कुछ चीजें सही जगह पर फिट कर दें, तो फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि हम उस पूरे अपने जो हमारे एक रूटीन है उसको एक कंफर्टेबल तरीके से, एक इजी तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से हम उसको प्रॉपर अपना मैनेज कर पाए। अब एक चीज करते हैं, एक चैट बॉक्स में जल्दी से आप लोगों से रिस्पॉन्स लेना चाहूंगी उन चीजों के बारे में जो कि आपको स्ट्रेस में डालती है। व्हाट आर द थिंग्स दैट लीड यू टू स्ट्रेस? क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि अब नहीं, इससे ज्यादा अब मेरी हिम्मत नहीं है चीजों को हैंडल कर पाने की? तो क्विकली राइट इट एंड डोंट वरी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। डेडलाइंस, लेस टाइम मोर वर्क, जल्दी से, परफेक्शन, डेडलाइन, राइट, एंड व्हाट मोर, certain deadlines, right? So everything that was supposed to be done yesterday but is to be done today. Less time, time management, lack of knowledge, expectations, perfection, mischievous students when people judge, okay, arguments, deadline and perfection, unexpected last minute work. Great. तो ये सारी चीजें जो हैं, मेरे पास इनमें से किसी का सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आपको ये लगता था कि मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि क्या क्या चीजें आपको स्ट्रेस करती है और फिर मैं आपको तरीके बताऊंगी कि इनका क्या किया जा सकता है, तो ऑनेस्टली मैं भी कोशिश कर रही हूँ सारी डेडलाइंस मीट करने की। मैं भी कोशिश कर रही हूँ अनएक्सपेक्टेड जो लास्ट मिनट चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे अभी ये सेशन शुरू होने वाला था और मेरे पास रीजनल ऑफिस से फ़ोन आ रहा था किसी काम के लिए, और मेरे को उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा कि 1 घंटे का टाइम आप मेरे को दे दो, उसके बाद मैं आपसे इस बारे में डिस्कस कर लूँगी। तो ये जो ऑल ऑफ अ सडन चीज़ आ गई, दैट वाज गुड इनफ टू पुट मी अंडर स्ट्रेस। पर आपको मेरे चेहरे पे स्ट्रेस नजर आ रहा है क्या? या मेरी जिस तरीके से मैं बैठी हूँ, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको लग रहा है? देखिए, एक ही तरीका है, या तो स्ट्रेस से हम परेशान हो जाएं या ये सोचे कि ठीक है जो भी चीज है उसको देख लेंगे, अभी जो है जो हमारे सामने है हम उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके साथ एक छोटा सा टेम्पलेट शेयर कर रही हूँ। मैं एक आपके साथ लेट मी जस्ट चेक मैं किस तरीके से, ओके, डॉक्टर You want to share the, yes, you want to share the screen? नो, आई डोंट वांट टू शेयर द स्क्रीन डॉक्टर नायक। मेरे को एक फाइल शेयर करनी थी जो कि मैं करती आती हूँ, बट अभी मेरे को उसका ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है। कैन यू प्लीज हेल्प मी? Yes. I think I'll ask my technical person, Ritika is there. Ritika, Okay. you can help, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Ritika, Share screen is open, ma'am. You can share. ओके रितिका, मेरे को एक फाइल शेयर करनी है, पीडीएफ शेयर करना है, तो ये मैं उसको किस तरीके से शेयर कर सकती हूँ? You can share the screen, ma'am. Then you can connect easily.
First, you have to share your screen. Okay, I'll share my screen. Chaliye, I'll share my screen. I'll just open that template and I'll share my screen. ओके, तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पर एक स्ट्रेस ट्री जैसा कुछ टेम्पलेट नजर आ रहा होगा. यस मैम. अब यहाँ पर हम एक स्ट्रेस का बेसिक आइडिया समझने की कोशिश करते हैं. ये जो आपको पत्तियों वाली जगह दिख रही है, जब भी आप किसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आए तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिए उन लोगों के नाम या उन सिचुएशंस को, उन ये चीज़ों को जो कि आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है. बट बेसिकली देखा जाए तो ये स्ट्रेस आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रेस आउट कर रही है, बट ये आपके स्ट्रेस का मेन कारण हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. इसके जो कारण है कुछ और हो सकते हैं. जैसे डेडलाइंस की मैंने काफी लोगों का देखा कि काफी लोग बोल रहे थे कि डेडलाइन से उन्हें स्ट्रेस होता है. तो मान लीजिए आपकी डेडलाइंस, यहाँ जो लीव्स वाली जगह है, अगर हम यहाँ पर लिखें तो आपका डेडलाइन आपको स्ट्रेस में डाल रहा है. उसका मेन कारण क्या हो सकता है? डेडलाइन आपको स्ट्रेस में डाल रहा है, उसका मेन कारण ये हो सकता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है. आपको जो काम पिछला करना था वो आपके कंट्रोल में नहीं है और ऑल ऑफ अ सडन एक और नया काम आ गया. या फिर आप जो भी काम आपको बोला गया, जो आपको डेडलाइन दी गई, आपने उसको स्टार्ट ही लेट किया. आपको मान लीजिए 10 दिन का टाइम था और आपने 2 दिन पहले ही उसके बारे में सोचना शुरू किया. अब मान लीजिए मेरी और डॉक्टर नायक की बात हुई है हफ्ते भर पहले कि हम आज इस तरीके से एक वर्कशॉप करेंगे, और मैं इसके बारे में भूल जाऊं, और आज सुबह सुबह मेरे को अगर याद आए कि अरे मेरे को तो ये एक वर्कशॉप की डेडलाइन मिली हुई थी जो मुझे आज कंडक्ट करनी है, तो क्या ये डेडलाइन मेरे लिए या ये जो कमिटमेंट था वर्कशॉप के लिए ये मेरे स्ट्रेस का कारण होगा, या ये स्ट्रेस का कारण होगा कि मेरी प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी, या मैंने चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं लिया हफ्ता भर पहले जब मेरा डिस्कशन हुआ जितना कि मुझे लेना चाहिए. तो ये मेरे स्ट्रेस के असली कारण है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट मुझे प्रॉपर करना है. मेरी शेड्यूलिंग जो है, मेरे को उसमें प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को कि क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ बाद में करनी है. और इन स्ट्रेसर्स का जो ये टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, जो हम बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो मिसिंग है, उसके रूट कॉज क्या है? उसके रूट कॉज यही है कि अगर मेरी शेड्यूलिंग प्रॉपर नहीं है, अगर मेरा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, अगर मैं चीज़ों को प्रॉपर प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही हूँ, दैट मीन्स कि मेरे को एक बार अपने शेड्यूल्स को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने थिंकिंग स्टाइल को, अपने बाकी जो भी मेरा तरीका है एक मैनेजमेंट करने का, चीज़ों को मैनेज करने का, उनको मेरे को सही करना पड़ेगा. अगर मैं वो चीज़ें अपनी इन प्लेस कर पाती हूँ, अगर मैं वो चीज़ें अपनी सही कर पाती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपनी डेडलाइंस को ज़्यादा बेटर तरीके से मीट कर पाऊंगी. आई होप दिस स्मॉल लिटिल एग्जाम्पल विल गिव यू एन आइडिया कि हम किस तरीके से चीज़ों को, स्ट्रेस को अपने को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को अपनी लाइफ में बेटर बना सकते हैं. अब हम कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे जिनकी हेल्प से हम स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे. आई थिंक किसी का ऑडियो ऑन है. यू कंटिन्यू. ओके, तो हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला अपने लाइफ में फिक्स कर लेना है, विच इज मोस्ट. मोस्ट इज एन एक्रोनिम फॉर M stands for motivation, O for optimism, and ST for stress tolerance. अगर हम मोटिवेटेड हैं चीज़ों को लेकर, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं और अगर हमारा स्ट्रेस टॉलरेंस हाई है, तो फिर हम बहुत सारी सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं. दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अपने ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस है उनको थोड़ा सा लोअर करिए.
There are times wherein we are not able to deliver because there are too many things to manage. It's okay. Try and find out what is the best way to give your best, but do not stretch yourself to the extent that you enter that segment of burnout. Do not stretch yourself too much. अपनी एक्सपेक्टेशन जो अपने आप से है उनको थोड़ा सा कम कीजिए, अपनी चीजों को रिविजिट कीजिए और फिर से फ्रेश स्टार्ट कीजिए अगर आपको लगता है कि आप चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जो आप चीज कर सकते हैं एक वो है कि आप अपने प्लान्स को शॉर्ट टर्म रखें। अपना एक लंबा सा प्लान बनाने की जगह आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में अपने प्लान को बांटें और एक स्टेप एक टाइम पर अकम्प्लिश करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप जाएं। हेलो। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट यस यू कैन। व्हेन यू कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट यू कैन, आपका शो ही नहीं कर रहा है मैम। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि जब हम अपने आप को ये बताते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को चैलेंज कर रहे हो। और लिंक पे तो नहीं जा रही हो? टास्क दे रहे होते हैं कि हाँ किसी और लिंक से तो नहीं जा रही हो? हाँ, किसी और लिंक से तो नहीं जा रही हो? Ritika madam, I think your voice, you have to mute your voice. Sorry sir, sorry sir. Your entire is disturbed. Sorry sir. It's okay. Ma'am, continue. जी, राइट। तो हम जहाँ पर ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसमें अब हम कुछ चीज़ें ऐसी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम चीज़ों को अपनी लाइफ में थोड़ा सा सेटल करते हुए चीज़ों को अच्छा कर सके। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर एक मैं शेयर करूँगी जो कि आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसके साथ में एक छोटा सा क्विज भी करूँगी। तो आप लोग सब मेरी स्टोरी जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस क्विज में विनर वो होगा जो सबसे पहले आंसर देगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप जरा ध्यान से स्टोरी सुनिएगा, नहीं तो आप शायद वो क्विज बाद में जीत ना पाए। तो ये स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ समय पहले की बात है, जब कोविड की वजह से लॉकडाउन नहीं था, और मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए मैं दिल्ली गई हुई थी, और मुझे लगा कि मेरे को अपने फ्रेंड से एक से मिलना चाहिए। तो आई कॉल्ड हिम अप एंड सेड कि भाई मैं तुझे मिलने आ रही हूँ। ही सेड कि ठीक है भाई तुम ऑफिस आ जाओ। अब ही इज अ मार्केटिंग का पर्सन, तो मार्केटिंग थोड़ा सा अलग तरीके का डोमेन होता है, हम टीचर्स ज्यादा उसकी चीजें समझते नहीं है। तो जब मैं पहुंची तो उसने मेरे से कहा कि तुम मेरे केबिन में बैठो, मैं जरा बॉस से मिलकर आता हूँ। और वो बॉस का चैम्बर सामने ही था, तो आई कुड सी उसका बॉस उसको बुरी तरह से डांट लगा रहा है, खूब जोर जोर से चिल्ला रहा है और बिल्कुल फायर्ड अप हुआ पड़ा है। तो मैं चुपचाप देखती रही। जब वो लौट के आया, ना उसने कुछ बताया ना मैंने कुछ पूछा, और फिर उसके बाद ही कॉल्ड हिज डे ऑफ एंड हम लोग उसके घर पर डिनर के लिए मूव करने लगे, जहाँ उसकी फैमिली हम लोगों का वेट कर रही थी। रास्ते में ही शेयर कि ओह आई हैड अ टफ डे, एक्चुअली मेरा जो टारगेट है वो काफ़ी मिस हो रहा है, और मेरी टीम जो है उसमें अच्छे लोग नहीं हैं, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें कर नहीं पा रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम मैंने आज सुबह ही सुबह डॉक्टर से अपना रिपोर्ट मंगवाया था। मैंने जब रिपोर्ट मंगवाया तो मुझे मालूम पड़ा कि क्योंकि उन लोगों का फैमिली में कुछ जेनेटिकल इश्यूज थे, तो वो जेनेटिकल इश्यूज विद एज उसकी भी मेडिकल रिपोर्ट में शो होने लगे। एंड देन ही ऑल्सो शेयर्ड कि भाई मैं इस वक्त मैं क्या करूं, मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूं, जैसे जैसे जिस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है मेरे परफॉर्मेंस का, मेरे काम का, तो उससे मेरे जो इंसेंटिव्स हैं वो भी कम हो रहे हैं, और मेरे को अपनी जो फाइनेंशियल वो है चीज़ें, जो अपने कमिटमेंट्स हैं उनको भी कट डाउन करना पड़ रहा है। सो आई सेड या आई अंडरस्टैंड एंड आई हैड नथिंग, मैं ज़्यादा कुछ उसको कह नहीं सकती थी, आई जस्ट heard whatever he said. हम घर पहुंचे। घर पर एंटर होने से पहले उसके घर के बाहर एक बहुत प्यारा सा पेड़ था,
किस चीज का पेड़ था वो मैं नहीं समझ पाई, बट एक अच्छा सा ग्रीन सा पेड़ था। उसके पेड़ के पास गया, उसने उसकी लीव्स को टच किया और एकदम से बहुत प्यारी सी स्माइल दी और कहा चलो सब लोग अंदर वेट कर रहे होंगे। वो इंसान जो अभी से 5 मिनट पहले तक बहुत ज्यादा टेंशन था, जो अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर रहा था कि उसकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, उसकी वर्क प्लेस पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, घर में एंटर करते वो बिल्कुल डिफरेंट इंसान था। उसने अपने बच्चों को हक किया, अपनी वाइफ को हक किया, वाइफ को इंट्रोड्यूस किया, बताया कि भाई हम लोग 4th 5th में साथ पढ़ते थे, हम लोग एक सीट पर बैठते थे, ये मेरा टिफिन उठा के खा जाती थी। और घर में जो मेरा दोस्त था और जो ऑफिस में मेरा दोस्त था, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज और मुझे खूब मजा आया। वी हैड गुड टाइम एंड देन आफ्टर दैट ही सेड कि ठीक है मैं तेरे को तेरे होटल ड्रॉप कर देता हूँ। रास्ते में जब हम जा रहे थे तो मुझसे रुका नहीं गया ना, यार कि यार तूने क्या किया था, ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। जब हम रास्ते में जा रहे थे ऑफिस से, यू वर वेरी टेंस, यू वर वेरी अपसेट, बट एट होम यू आर वेरी डिफरेंट। कहते हैं मैंने अपनी लाइफ में एक रूल बनाया हुआ है, वो रूल ये है कि मैं कितना भी परेशान हूँ अपने काम की वजह से, मैं वो परेशानी लेकर घर में एंटर नहीं होऊंगा। इसलिए मैंने वो पेड़ अपने लिए एक सिंबल बना रखा है कि मैं उस पेड़ पर अपनी सारी परेशानियां छोड़ दूंगा और उस पेड़ से कहता हूँ कि मैं भाई सुबह मैं इन परेशानियों को तुमसे ले लूंगा, तब तक कर ले तुम संभाल के रखो। और कई बार ऐसा होता है कि सुबह जब मैं वापस जा रहा होता हूँ तो बहुत सारी परेशानियां मैं वहां से उठाना भी भूल जाता हूँ, and it makes my life much more easier. As a teacher, मुझे जल्दी से बताइए, अब ये क्विज है, कि वो कौन सी चीज ऐसी है जो कि आपको घर से स्कूल और स्कूल से घर कैरी नहीं करनी चाहिए? टेंशन। टेंशन, स्ट्रेस, वरीज, बिल्कुल। तो इस चीज का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी लाइफ भी अच्छी बेहतर बना पाएंगे और अपने आसपास के लोगों की लाइफ भी अच्छी बना पाएंगे। अब इसके साथ व्हाट आई वांट इज, अब आ रहे हैं हम अपने सेशन के सबसे ज्यादा एक्टिविटी टाइप के पोर्शन में। तो अब आप लोगों को, आप जहां बैठे हो बिल्कुल सबसे पहले रिलैक्स होकर बैठ जाइए। एंड आई एम श्योर हम लोगों ने जैसे डिसाइड किया था, आप में से काफी लोग अपनी वो स्माइल कैरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों की स्माइल जो है वो पड़ोस वाली चेयर पे रखी हुई दिख रही है, जरा उठाकर जल्दी से अपने फेस पर दोबारा लगाइए, जल्दी से। वेरी नाइस, तो अच्छी बात है। अब मेरे को एक चीज बताइए, बहुत सारी वो चीजें करते हैं जो कि हमें बेसिक पैर की चीजें होती हैं जो कि हमें बहुत खुश करती हैं, कुछ भी उधम करते हैं, कुछ भी शैतानी करते हैं। क्या बड़े होकर भी आपने अपने अंदर का वो बच्चा थोड़ा सा जिंदा रखा है या नहीं रखा है? अगर रखा है तो वो चीजें आप शेयर करने की कोशिश कीजिए जो कि आज भी आप कर लेते हो अगर, तो आपको बहुत मजा आता है। चाहे आप घर वालों से छुप कर करते हो, चाहे आप अपने कलीग से छुप कर करते हो। डॉक्टर नायक, ये सवाल आपके लिए भी है, आपको भी यहाँ पर बताना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप अभी भी करते हो तो आपको बहुत मजा आता है। जैसे मुझे बहुत मजा आता है अगर मैं जोर जोर से शाम को अपनी बालकनी में खड़े होकर गाना गा सकती हूँ। तो जब भी मौसम अच्छा होता है, मेक श्योर दैट आई डोंट केयर अबाउट कि बगल वाली बालकनी में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, या कोई क्या कहेगा कि प्रिंसिपल मैडम इतनी जोर से क्यों गाना गा रही हैं। मेरा मन है तो मैं गाना गाऊंगी। सो ओके, लेट मी सी क्या लिख रहे हैं। सिंगिंग, डांसिंग, tickling my family members, this is cute. Mimicry, ये दीपा नरुला जी से मिमिक्री जरूर करवा के देखी जाए। डांस विद माय किड्स, सिंगिंग, वॉचिंग अ कार्टून, डांसिंग लाउड म्यूजिक, प्लेइंग डांस इन फ्रंट ऑफ मिरर, हाइडिंग चॉकलेट्स एंड ईटिंग, डांसिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ क्या डॉक्टर नायक ने यहाँ पर लिखा है अपना जवाब। अभी तक इनका जवाब मिसिंग है। मैं बोल ही देता हूँ मैम। जनरली जब मैं छोटा था तो
मिठाई खाने का, लड्डू खाने का बहुत पसंद था। और अभी मैं डायबिटिक हूँ लास्ट 10-15 साल से। ओके। वो लड्डू मुझे कभी मिलता नहीं था, लेकिन फिर भी कभी भी अगर मौका मिले तो चुपके से चला जाता हूँ कहीं से भी, और स्टाफ को भी बोल देता हूँ कि मेरे लिए एक लड्डू ले आना और लड्डू खाना। वो जो घर पे मना करते हैं हमेशा, नहीं खाना है नहीं खाना है, वो लाके खाने का पसंद। शायद सभी स्टाफ को ये पता है कि सर और कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन बोल के लड्डू जरूर खा लेते हैं। ये हमारा बहुत एक आई है। कैन आई कैन रियली रिलेट विद दिस, क्योंकि आज मैंने सुबह बेसन के लड्डू बनाए हैं और अपने आप को रोकते रोकते भी मैं 3 लड्डू खा चुकी हूँ। सो आई थिंक ये सारी वो जो छोटी छोटी खुशियां हैं, पहली टेक्निक जो हमें रिलैक्स करने के लिए जरूरत है कि जहां आप लो फील कर रहे हो, अपना ध्यान हटाओ उस सारी टेंशन से, परेशानी से, हर चीज से, और जल्दी से वो कुछ ऐसा करो, चाहे एक गाना गाना हो, चाहे एक अपने मनपसंद चीज को गुनगुनाना हो, बट अपने मन को वहां से हटाने की कोशिश करो, वहां से भगाने की कोशिश करो। एंड टेक माय वर्ड, इट रियली 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 वर्क्स। कुछ भी करो आप। दूसरा एक चीज जो हम अभी करेंगे वो ये है कि सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग सब बिल्कुल अच्छी से रिलैक्स होके बैठ जाइए। बैठ गए? अब अपने हाथों को ऊपर लेकर जाइए, जहां भी बैठे हैं आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, खींचे खींचे, हो सकता है 1-2 इंच हाइट बढ़ जाए, जल्दी से जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए, होल्ड कीजिए इसे, और एक सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को रिलीज कर दीजिए और इजी हो जाइए, बिल्कुल इजी। ठीक है? तो ये स्ट्रेचिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि कभी भी कहीं भी आप कर सकते हो और ये हमेशा वर्क करती है। आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, आप आगे कर सकते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि अपनी उंगलियां भी चटकाते हैं, दो दिस इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि इससे आपके जॉइंट्स जो हैं उनमें आगे जाके प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, वंस इन अ वाइल करने में कोई बुराई नहीं है। तो आप किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को हिलाइए, स्ट्रेच कीजिए, उसको टेंशन जो वो आ गई है, क्योंकि आपके दिमाग में अगर टेंशन है तो आपके बॉडी में जनरेट होना शुरू होता है। जब आप स्ट्रेच करते हो तो आप कहीं ना कहीं वो जो टेंशन आपकी बॉडी में जनरेट होता है उससे रिलीज कर रहे होते हो। और इसको करने के और भी तरीके हैं जो थोड़े लंबे वाले हैं, जो कि हम अभी ट्राई भी करेंगे 1-2 तरीके। बट हाँ, सबसे इजी, सबसे सिंपल है ये। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है, वो ये है कि पानी का एक घूंट भर लीजिए, एक और घूंट भर लीजिए, और उसके बाद एक और घूंट भर लीजिए। टोटल कितने घूंट? जल्दी से 3, राइट। और उसके बाद चाहे तो आप पूरा गिलास खाली कर सकते हैं। ठीक है? तो पानी को थोड़ा थोड़ा सिप करके आप पिएंगे तो आपका दिमाग काम होगा, आपका बॉडी काम होगा, और उससे आप अपने स्ट्रेस लेवल को नीचे जाते हुए देखेंगे। हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमें बचपन से बड़े बुजुर्ग सबने कहा है कि चिंता पिता समान है। तो जब ये चीज हम जानते हैं, तब भी अगर हम चिंता करते हैं, तब भी हम परेशान रहते हैं, तो शायद हम अपनी चिंता खुद से सजा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कोई भी समझदार इंसान करना चाहेगा। जब भी आप सांस लेते हैं, कैसे सांस लेते हो? जरा मेरे को सांस लेकर दिखाओ आप लोग। ये कुछ लोग मुस्कुरा के दिखा रहे हैं, मैंने मुस्कुराने को के दिखाने को थोड़ी कहा है, मैंने ये कहा सांस लेकर दिखाओ भाई। सांस जब हम लेते हैं, कोशिश कीजिए कि जितनी डीप ब्रेथ ले सकें उतनी डीप ब्रेथ लीजिए और उनको होल्ड करके फिर रिलीज कीजिए। एक बहुत क्यूट सा तरीका जो मेरे को बहुत मजेदार लगता है वो ये है, जब आप सांस लेते हो तो ऐसे लो जैसे आप फूल को सूंघ रहे हो। तो जरा दिखाना आप लोग, फूल को कैसे सूंघोगे?
और जब आप सांस छोड़े तो ऐसे छोड़िए जैसे आप मोमबत्ती को बुझा रहे हो, बट डू इट विद योर नोस्ट्रिल्स। ठीक है, तो हम इसी तरीके से एक बार सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। कैसे लेंगे? हम सांस ऐसे लेंगे जैसे हम क्या कर रहे हैं, बोल सकते हैं। जब कहीं ऐसा लगे बोलना है, अनम्यूट करो, बोल दो। सर नहीं फूल बोलेंगे, सूंघ रहे हैं मैम, फूल फूल सूंघ रहे हैं। तो जल्दी से आप कैसे सांस लेंगे? 1 2 and 3। रिलीज कैसे करेंगे सांस? जैसे कि हमारे को मोमबत्ती बुझानी है, मोमबत्ती बुझानी है। ये मतलब पूरा टेंशन को बाहर निकाल के फेंक देंगे। मोमबत्ती को बुझाते हुए क्या करेंगे? अपने सारे टेंशन को क्या कर देंगे? बाहर फेंक देगा। बिल्कुल। और वैसे फ्लावर कौन कौन सा? फ्लावर भी वही वाला स्मेल जो आपका रोज। तो जैसे मेरे को रजनीगंधा सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं रजनीगंधा स्मेल कर रही हूँ। तो एक बार फिर से करें हम लोग। ओके, विल डू इट अगेन। यस। 1 2। जब भी आप ब्रीद इन करते हैं, कोशिश किया कीजिए कि आप शैलो ब्रीदिंग ना करें। ठीक है, आप एब्डोमेन ब्रीदिंग करें। एब्डोमेन मतलब आपकी जो सांस है वो आपके नोस्ट्रल से ट्रैवल अंदर करते हुए आपके विंड पाइप से नीचे एब्डोमेन तक जानी चाहिए, बिल्कुल अंदर तक जानी चाहिए, आपके जो एब्डोमेन है उसके लास्ट कॉर्नर तक, और फिर वहीं से आप उसके बाहर जनरेट करेंगे। जितनी बार, देखिए, एक हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे वेदों में कहा गया है कि हम सबकी जो सांसों की माला है वो काउंटेड है। जितनी सांसें हम लेंगे वो डिफाइंड है, नंबर डिफाइंड है। तो हम अपना लाइफ स्पैन कैसे बढ़ा सकते हैं? हम अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं अगर हम अपने सांस को, अपनी श्वास को लंबा कर दें। अगर आप छोटी छोटी सांस लोगे तो जल्दी जल्दी अपना कोटा खत्म कर दोगे, और लंबी लंबी सांस लोगे तो क्या होगा? लाइफ स्पैन बढ़ेगा। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जितना आप ऑक्सीजन बॉडी में लेकर जाएंगे, नाउ लेट्स कम ऑन द अदर साइड ऑफ इट। जब आप अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने सेल्स को एनर्जी दे रहे होते हैं। जो आपकी बॉडी के छोटे छोटे जो आपके यूनिट्स हैं बॉडी की, उसको आप एनर्जाइज कर रहे हो। तो आप जितनी डीप ब्रेथ लोगे उतनी अच्छे तरीके से आप ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बॉडी के अंदर ले जा पा रहे हो, तो उतनी ही ज्यादा अच्छी तरीके से आपकी बॉडी, आपके सेल्स एनर्जाइज हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा वो एनर्जाइज होंगे उतना आपकी बॉडी इम्यून बनेगी, उतनी आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी। और जब आप स्ट्रेस फ्री होगे तो जाहिर सी बात है खुशी खुशी इंसान ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर पाता है। एक और तरीका जो हम सीख सकते हैं आज, वो है रीबूट टैपिंग। मतलब हम अपनी जो उंगली के पोर हैं, अब ये डिस्क्लेमर के साथ आती है एक्टिविटी उन लोगों के लिए कि जिनके लंबे लंबे नाखून हैं, वो कृपया ना करें, क्योंकि इसका फिर जो दुष्परिणाम होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो रीबूट टैपिंग में हमारी बॉडी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ साइनसेस होते हैं, जिनको अगर हम टैप करते हैं तो उससे भी हमारी टेंशन जो है वो रिलीज होती है। तो एक एरिया होता है बिटवीन आईज, ये जो आपके बीच में जो आपका माथे के बीच वाला एरिया है, आप लोग कर सकते हैं मेरे साथ। आप अपना ये मिडिल वाला फिंगर लीजिए, एंड प्लीज वही लोग लेना जिनके नाखून बड़े हुए नहीं है। जिनके नाखून बड़े हुए हैं वो लोग कोशिश करो कि हाथ को इस तरीके से रखो। ठीक है, मैं ये तरीका बता दे रही हूँ, ऐसे मैं बताती नहीं। अभी इसको जहां आप बिंदी लगाते हैं लेडीज, या जहां आप तिलक लगाते हैं जितने भी मेल मेंबर्स हैं, वहां पर आप आंखें बंद कीजिए और हल्का हल्का अराउंड 10 to 20 टाइम्स आप यहाँ पर टैप कीजिए और इस फीलिंग को महसूस कीजिए। आंखें खोल सकते हैं आप।
अब दूसरा जो टैपिंग पॉइंट है वो है आपकी आईज के साइड में. सो आप अपनी ये दोनों छोटी वाली फिंगर्स लेंगे, सॉरी नॉट छोटी, ये आप यहाँ पर इस तरीके से, इंडेक्स फिंगर. इंडेक्स फिंगर, थैंक यू, इंडेक्स फिंगर लेकर और आप अपने साइड में, आईज के साइड में टैप कीजिए. जब भी आप टैपिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप आंखें बंद रखें. अब इन्हीं फिंगर्स को, इंडेक्स फिंगर्स को आप धीरे धीरे अपने आईज के नीचे लाकर टैप कीजिए और मूव कीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, आउटर पॉइंट से इनर पॉइंट तक आईज के टैप करते हुए मूव कीजिए. अब इसको आप अपने आईब्रोज पे लेकर जाइए और जो आपका पहला पॉइंट हमने बिटवीन आईज वाला लिया था वहां तक लेकर जाइए और फिर साइड तक लेकर आइए. और उसके बाद जब आपने अलग अलग ये सारा टैप कर लिया है तो उसके बाद आप सर्कुलर मोशन में अपने आईज के आसपास टैप कर सकते हैं. और ये करने में जब आप पूरी आईज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी सबसे छोटी वाली फिंगर और आप अपने अंगूठे को छोड़ के बाकी जो तीनों आपकी इंडेक्स, मिडिल और जो रिंग फिंगर है, तीनों को लेकर आप यहाँ पर ये टैपिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो जब भी आप करना चाहें इसको आप करिए. और आई एम श्योर दिस इज वन थिंग जो कि आपको रिलैक्स फील करवाएगी. आप अपने कॉलर बोन्स को भी टैप कर सकते हैं. कॉलर बोन्स पर भी आपके रिलैक्सेशन के लिए मसल्स होती हैं जो कि अगर आप अपने कॉलर बोन्स को टैप करते हैं, जिनको आप अपने ये बीच वाले तीनों फिंगर्स की हेल्प से कर सकते हैं, तो आपको वो भी बहुत बेहतर फील करवाएगा. अब एक छोटी सी चीज जो आप करेंगे वो ये होगी, एक अभी हमने टैपिंग की बात किया, ठीक है. अब मान लीजिए, अब जो हम अभी बात कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा. फोकस ऑन योर प्रॉब्लम. अपनी कोई भी एक प्रॉब्लम ले लीजिए जो भी आपको परेशान कर रही हो, अभी इंस्टेंटली तुरंत परेशान कर रहे हो, तो आप अपनी कोई भी एक प्रॉब्लम ले लीजिए और सोचिए उसके बारे में कि आप उसको लेकर कैसा फील करते हैं और वो फीलिंग आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ आपको अनईजी महसूस करवाती है, आपके ब्रेन में अनईजी महसूस करवाती है, आपके पाम स्वेट होने लगते हैं, आपको कितना अनईजी महसूस करवाती है. इसको आप 0 to 10 की इंटेंसिटी में एक बार सोच कर देखिए. अब आप आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथों में बलून्स का, गुब्बारों का एक बड़ा सा बंच होल्ड किए हुए हैं. आप इमेजिन कीजिए कि जो आपकी परेशानियां हैं वो उस बलून के गुच्छे के जैसे आपके हाथ में बंद है, आपकी मुट्ठी में बंद है. सारी परेशानियां इकट्ठी कर लीजिए और उस गुब्बारे के गुच्छे के जैसे अपने हाथ में बांध लीजिए, समेट लीजिए. आप बिना आंखें खोले अपनी मुट्ठी रिलीज कर दीजिए और वो सारे गुब्बारे उड़ा दीजिए. एंड नाउ फ्रॉम आईज ऑफ योर सोल, अपने मन की आंखों से उन सारे गुब्बारों को, उन सारी परेशानियों को हवा में दूर जाते हुए, डिसअपियर होते हुए महसूस कीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ
and slowly open your eyes. ओके, एक और चीज करते हैं. जब भी आप परेशान हो, दिस इज वन थिंग विच आई डू वेरी रेगुलरली. मेरे जो टीममेट्स है ना, मुझे बहुत परेशान करते हैं. जब ये मेरे को बहुत परेशान करते हैं, अच्छा मेरे को कोई परेशान नहीं करता. इससे पहले ये लोग आकर मुझसे लड़े, मैं पहले ही कह दूं कोई मेरे को परेशान नहीं करता. रादर जब मैं परेशान होती हूँ तो ये लोग आके मेरी परेशानियां खत्म कर देते हैं अपनी प्यारी प्यारी स्माइल्स के साथ. ठीक है, अभी ठीक? थम्स अप दो जल्दी से. ओके, बट अदरवाइज हम सबकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो हमें परेशान करती हैं. तो what I do is simple. I take a deep breath and tell myself peace, relax, and release my breath. It works for me all the time. ये एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए हमेशा काम आई है. एक वर्ड रिलैक्स, एक वर्ड पीस. अपने आप को बताना कि ठीक है, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, आपकी लाइफ को बहुत हद तक सॉर्ट आउट कर सकता है. अब जो भी आपकी परेशानी है, आप ये जितनी भी चीजें हमने देखी अभी, जितनी भी चीजें हमने की करने की कोशिश किया, इनको आप चाहे तो इकट्ठा कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, या इनको अलग अलग भी कर सकते हैं. बट अपने लिए एक रिलैक्सेशन टेक्निक डिफाइन करने की कोशिश करो. एक चीज जो आप बच्चों के साथ कर सकते हो और बड़े भी कर सकते हैं, वो भी बलून वाली होती है. अब उस वाली बलून एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम जो हमारी सारी परेशानियां हैं, ठीक है, तो अब मैं जैसे बता रही हूँ वैसे करो. सीधे बैठ जाओ. एक तो ना सबसे पहले जो चीज आप लोग लाइफ में सीख लो वो है सीधे बैठना. भाई मैं तो इसलिए सीधे बैठती हूँ क्योंकि मेरी हाइट बहुत छोटी है. अगर मैं और ज्यादा ड्रूप होके बैठूंगी तो फिर तो मैं नजर ही नहीं आऊंगी. वैसे ही आधे से ज्यादा लोग हर दूसरे दिन मुझे आके बता देते हैं आप प्रिंसिपल नजर नहीं आते हो. अब मैं कैसे बताऊं कि मेरी बेटी अभी 22 साल की हो जाएगी 10 दिन बाद. ठीक है, so sit straight, sit with your shoulders erect and with your chest forward. थोड़ा तन के आराम से तसल्ली के साथ बैठिए. अब कोई भी परेशानी आपके दिमाग में आ रही है, उसको अपनी सांस के साथ आप अंदर लेकर जाओगे और अपने टमी में होल्ड करोगे एक बलून की तरह. आपका टमी क्या है? एक बड़ा सा बलून है जिसमें आप सारी परेशानी को लेकर जाओगे और होल्ड करोगे. और उसके बाद जैसे बचपन में करते थे ना, क्या करते थे कि हम बड़ा सा गालों पर, और फिर क्या करते थे, जरा 2-4 जो लोग गुब्बारे बना चुके हैं गालों पर, यस. तो अब ये सारी परेशानियां टमी में लेकर जाओगे. टमी को एक बलून के जैसे बिल्कुल फुल कर लोगे परेशानियों से, और हल्का सा पंच मारोगे और सांस को बाहर रिलीज कर दोगे. कौन क्या करने वाले हैं? हम सारी परेशानियों को ब्रेथ के साथ अंदर लेकर जाएंगे, अपनी टमी में एक बलून के जैसे भर देंगे उन्हें, और फिर बलून को पंच, और सांस सारी बाहर. और सांस के साथ क्या बाहर? सारी परेशानियां, सारे टेंशन बाहर, चीजें बाहर. ठीक है, तो हम चाहे तो अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम 1-2 टेक्निक्स और समझ सकते हैं और देख सकते हैं. बट उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि आज में जीना हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. किसी को नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है. आधे से ज्यादा लोग परेशान इसलिए रहते हैं कि या तो वो जो पिछला बीत गया उसको लेकर दुखी हो रहे होते हैं, या जो होने वाला है उसको लेकर चिंता कर रहे होते हैं. वो आज में नहीं जी रहे होते हैं. तो हमेशा ये ध्यान रखना कि
आप जिस कल की चिंता कर रहे थे आज वही कल है। आई रिपीट, आप जिस कल की चिंता कर रहे थे आज वही कल है और सब कुछ ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली चीज ये करनी है हमें लाइफ में कि आज में जीना शुरू करना है। अपने आसपास के लोग, जो अपनी फैमिली है, आपके वो लोग जिन पर आपकी वजह से फर्क पड़ता है, आपके होने ना होने से, आपके मुस्कुराने से, आपके उदास रहने से फर्क पड़ता है, सबसे पहले उनकी चिंता कीजिए, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बाकी सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक टीचर के जैसे भी आपकी सारी परेशानियों के हल निकलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक और कहानी सुनाते हैं, ठीक है? वो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक किसान था, उसके पास घड़ी थी एक, जो जैसे ये मेरी घड़ी जो है ये बहुत पुरानी है और ये मेरी बड़ी फेवरेट घड़ी है। अब इमेजिन करो कि मैं वो किसान हूं और मैं अपने फार्म यार्ड में अपना सारा भूसा वूसा सब इधर उधर कर रही हूँ, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज कि ये घड़ी तो कहीं गुम हो गई। अब वहां पर इतना सारा हे है, इतने सारे बंडल्स हैं हे के, कि आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड। तो अब ऐसे में, ऐसी सिचुएशन में उस किसान ने क्या किया कि बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, वो उसने उन बच्चों को बुलाया और कहा कि भाई ये मेरी घड़ी खो गई, तुम लोग ढूंढने में मेरी मदद करो। बच्चों ने कहा ठीक है। बच्चों को तो वो भी खेल लगा, बच्चों ने खेल खेल में ढूंढने की कोशिश की, घड़ी को नहीं मिलना था, घड़ी नहीं मिली। वो बच्चे हताश होके, परेशान होके चले गए। उन्होंने कहा कि आपकी घड़ी नहीं मिली, सॉरी, कोई बात नहीं। अब वो किसान भी मायूस होके बैठ गया। उसने कहा इतना ही साथ था मेरा और इस घड़ी का, क्या किया जाए। पर तभी उन बच्चों में से एक बच्चा वापस आया। उसने किसान से कहा क्या मैं एक बार और ट्राई कर सकता हूँ? किसान ने कहा ओके, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए तो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं। अब उस चीज को किसान ने उस बच्चे को बोल दिया और वो बच्चा वहां पर उस घड़ी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। अब वो जब उस घड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो किसान भी वहां चुपचाप बैठा था, वो भी चुपचाप अपना घड़ी ढूंढ रहा था। और थोड़ी देर बाद वो कहीं एक कोने में गया और घड़ी ढूंढ कर ले आया। जब वो घड़ी ढूंढ कर ले आया तो किसान बिल्कुल बहुत खुश हो गया। उसने कहा वाह, तुम्हें कैसे मिल गई ये घड़ी? अभी तो सब लोगों ने ढूंढा पर घड़ी नहीं मिली थी। उसने कहा पहले जब हम सब लोग ढूंढ रहे थे तो यहाँ बहुत शोर हो रहा था, तो हमें घड़ी नहीं मिली, पर अभी जब मैंने ढूंढा तो बिल्कुल भी आवाज नहीं थी, सब कुछ शांत था, तो मेरे को घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे गई और मेरे को मालूम पड़ गया कि वो घड़ी कहाँ है। तो जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस उस शोर की वजह जैसे होता है जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो है चीजों पे फोकस नहीं कर पाता और हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाते हैं। तो एज टीचर्स जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको सॉल्यूशन भी तभी मिलेगा जब आप अपने दिमाग को क्या कर लेंगे। आवाज नहीं आ रही मेरे को। काम कर लेंगे, रिलैक्स हाँ, जब हम अपने दिमाग को रिलैक्स कर लेंगे, काम कर लेंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, तो ही हमारे को चीजों के सॉल्यूशन मिलने शुरू होंगे। तभी हमें चीजें प्रॉपर तरीके से नजर आएंगी। ओके, अब वापस हम म्यूट पर जाते हैं और वापस से अपने सेशन को शांत कर लेते हैं, ठीक है? अब इसके अलावा एक और हम एक छोटी सी एक्टिविटी और करेंगे। अच्छा, मैं कुछ चीजें फटाफट से और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जिनके आप नोट्स बना सकते हो, जिनको आप लिख सकते हो, और जब जहाँ जो परफेक्ट हो आपके लिए उस मेथड को आप यूज कर सकते हो। स्ट्रेचिंग हम देख ही चुके हैं, स्ट्रेचिंग हमेशा हर जगह वर्क करती है।
कई बार कुछ लोगों का मूड जो है अच्छी महक से भी एलिवेट होता है. सो यू कैन यूज सेंट्स ऑल्सो, यू कैन यूज, आजकल बहुत सारे एसेंशियल्स ऑयल्स आते हैं, तो आप उन एसेंशियल ऑयल्स का भी यूज कर सकते हो अपने मूड को बेहतर करने के लिए. फिर एक जो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डीक्लटर करना, मिनिमलिस्टिक लिविंग की तरफ जाना. जितना भी कचरा है, चाहे आपके आसपास हो, चाहे आपके दिमाग में हो, चाहे आपके लैपटॉप में, जहां भी कहीं है, सही कर दो, क्लियर कर दो. जो बेकार की चीज है जो आपको यूज नहीं करनी है उसे किसी को दे दो अगर वो अच्छी कंडीशन में है. अगर वो खराब कंडीशन में, डिस्कार्ड कर दो. बट डिक्लटर करो. अगर आप डिक्लटर करना शुरू कर देंगे, टेक माय वर्ड, आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा. फिर कई बार क्या होता है, हमें आदत होती है स्ट्रेस लेने की, हमें मजा आता है एंग्शियस फील करने में, स्ट्रेस्ड आउट फील करने में, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो 4 लोग हमसे आके पूछते हैं अरे भाई क्या हुआ. तो प्लीज ये बेचारगी वाला जो फॉर्मेट है उसको कृपया आप अपनी लाइफ से हटाएं और इसको छोड़कर अपनी इस आदत को बदलकर अपने आप में पावर है आप में, ये चीज आप महसूस करने शुरू कीजिए. और टेक माय वर्ड, इट रियली वर्क्स. कभी भी किसी भी इंसान में जब आप बहुत ज्यादा देखेंगे बहुत परेशान, बहुत रोता है, बहुत परेशान रहता है, तो वो कभी भी बहुत ज्यादा दिन तक आप महसूस करेंगे कि उसको बहुत ज्यादा दिन तक कोई भी अपने से कनेक्टेड नहीं रखना चाहता. जब आप बहुत प्रेशर में महसूस कर रहे हो तो आप एक डायरी में नोट करते चलिए कि क्या है चीजें जो आपको परेशान कर रही हैं, और आप ग्रेजुअली देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो इररेलेवेंट हो जाती है. जिन चीजों को लेकर आप परेशान हो रहे होते हैं, आप अगर अपनी डायरी में नोट करें और एक हफ्ते बाद उसको दोबारा देखेंगे, आप देखेंगे वो चीज इस लायक थी ही नहीं जिसके लिए परेशान हुआ जा सके. तो अगर आपको क्रॉनिक आदत है स्ट्रेस लेने की, चिंता करने की, परेशान होने की, तो ये डायरी मेंटेन करो, इट रियली वर्क्स. या किसी से बात करो, फाइंड आउट समबडी, अ ट्रस्टेड पर्सन जो आपको लेके जजमेंटल ना हो, और जो भी कुछ आपके मन में आ रहा है, जो भी आपके मन के विचार हैं जो आपको नेगेटिव फील करवा रहे हैं, बुरा फील करवा रहे हैं, जस्ट शेयर इट विद समवन. एंड ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, इनमें से कोई ना कोई टेक्निक जो है अपनी फेवरेट बना लो. जैसे मैंने आपसे कहा, आई लाइक टेकिंग डीप ब्रेथ एंड टेलिंग रिलैक्स टू माई सेल्फ. आई लाइक टेकिंग sip of water when I'm feeling upset or nervous. I like to stretch. तो ये अपने लाइफ की एक रूटीन के जैसे आप अगर हैबिट्स बना लेंगे तो ये सच में काम करती है. और एक चीज जो हमेशा काम करती है वो है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज, जितना कि हम जानते हैं कि एंडोर्फिन्स जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, एक्सरसाइज हमारी बॉडी में वो रिलीज करते हैं. तो कुछ नहीं तो 10 मिनट ही सही, बट 10 मिनट आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए. और खास तौर से जब आप अपसेट फील कर रहे हो तो कुछ मत करो, फोन लो एंड वॉक व्हाइल यू टॉक. आप अपने सोसाइटी का कहीं का भी कुछ भी करके, छत पर जाकर, लॉन में जाकर, कहीं भी जाकर 10 मिनट का ब्रेक लेकर वॉक कीजिए. अगर किसी ऐसे फ्रेंड से बात कर सकते हैं जो आपके चेहरे की स्माइल वापस दे सकते हैं तो उनसे बात कीजिए. तो कोशिश ये कीजिए कि कोई ना कोई आप ऐसा तरीका, ऐसा टेक्निक रेगुलरली लेकर चलें जिससे आप अपने आप को विद एवरी पासिंग डे एक बेहतर मेंटल स्टेट में, एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट में कैरी कर पाए. ठीक है. तो अब क्योंकि मेरे को टाइम 5 बजे तक का दिया गया था, और मैं तो देखो क्या होता है, टीचर्स जो हैं उनमें खास चीज और होती है जो आप पहचान सकते हो कि ये इंसान टीचर है, वो ये है कि वो नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली बोल सकते हैं, आपको ज्ञान दे सकते हैं. तो मैं तो चाहूंगी कि मतलब अब मैं तो कितने भी देर तक और बोल सकती हूँ और चीजें शेयर कर सकती हूँ, बट मुझे परमिशन उसमें डॉक्टर नायक की चाहिए होगी कि हमारे पास अभी समय है तो बताइए, वरना 5:01 तो हो चुके हैं. डॉक्टर नायक.
मैम मैम समय मैं जानता हूँ आप जितना आपको दिया जाएगा उतना आप कंटिन्यू करते रहेंगे, वो बिल्कुल जायज़ है। और मैं ऐसे प्लान्ड वे में अगर कुछ और स्ट्रक्चर बनाए और एक और टाइमिंग लेके हम आपको बुलाएं, शायद स्कूल में ही बुलाऊंगा, डायरेक्टली फेस टू फेस वर्कशॉप होगा। और वो भी आज जो कि एक डे का 1 डे का वर्कशॉप को मैंने 1 आवर में कन्वर्ट कर दिया, वो ज़रूर एक कंस्ट्रेंट है कोई भी ट्रेनर, कोई भी स्पीकर को बोलने के लिए। बट स्टिल आई बिलीव आपका सेशन इतना इंटरेस्टिंग रहा, एक दो और टिप्स अगर हो जाए तो कोई है इसमें हर्ज है ही नहीं। ठीक है, तो अब उसमें जो मेरी फेवरेट ट्रिक है वो करते हैं, वो है जोर जोर से हंसना। आई थिंक लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। ठीक है, कोई भी चीज, आजकल तो स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे मतलब जोक्स आप कहीं भी पढ़ सकते हो, आप अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हो। किसी भी तरीके से कोशिश ये कीजिए कि जब तक जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, आप हंसें और मुस्कुराएं। तो अब उसमें जब आप हंसते हैं और मुस्कुराते हैं तो उसमें एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किसी के ऊपर मत हंसिएगा, किसी को देखकर मत मुस्कुराइएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार एक होता है, एक बहुत अच्छा तरीका, बहुत इफेक्टिव तरीका होता है विजुअल इमेजरी का। हम कोशिश करते हैं कि ये सेशन जो है हम उसी के साथ एंड करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और आप लोग जो है फिर से जरा अच्छी तरीके से, जैसे मैंने बैठने का बताया था वैसे बैठ जाइए जरा एक बार। अभी हम स्क्रीन पर एक मैं कुछ प्ले कर रही हूँ, एक बार मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को इसकी आवाज आती है क्या, तो फिर विल डू इट अकॉर्डिंगली। जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या आप लोग ऑडिबल? Yes, ma'am. It's audible. Yes, ma'am, It is audible. Audible. Audible, ma'am. ठीक है, Audible, ma'am. ओके। अब आप लोग को स्ट्रेट बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। आपके शरीर की जितनी भी मसल्स हैं उनको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने शरीर के सारे हिस्सों को इजी छोड़िए। इस म्यूजिक पर फोकस कीजिए, अपना ध्यान सिर्फ इस म्यूजिक से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और सब कुछ भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए कि आपके आसपास कोई भी और चीज है।
पर हैं, कहीं समुद्र के किनारे या कहीं किसी पर्वत की ओर, किसी हरे जंगल में जहाँ लंबे लंबे देवदार के लहराते हुए पेड़ हैं। प्रकृति की सुंदरता को अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके शरीर का जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे आप रिलीज कर रहे हैं। आपके सारा टेंशन बाहर निकल जाने दें। हर एक बिट, हर एक कतरा, हर एक कण अपने स्ट्रेस का, टेंशन का निकल जाने दें। आप अपने हाथों से जो भी स्ट्रेस है उसे बाहर की तरफ जाते हुए देखें। बिल्कुल उसे जाने दें। रिलैक्स होने दीजिए अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने हाथों को बिल्कुल आराम से रिलैक्स होने दें। बिल्कुल टेंशन फ्री होने, बिल्कुल शांत होने दें। पूरी तरह से आपके मसल्स में जो तनाव है उसको रिलीज कर दें। अब अपने चेहरे को भी रिलैक्स करना शुरू करें। आपकी जो भवें हैं उनको रिलैक्स करें, आपके माथे को रिलैक्स करें। महसूस करिए कि आपकी भवों के बीच में, आपके माथे के बीच में जो भी कोई स्ट्रेस था वो आप रिलीज कर रहे हैं। उसे स्मूथ छोड़ दीजिए, अपने तनाव को हटा दीजिए। धीरे धीरे आपका माथा सारी स्ट्रेस लाइंस को खत्म करते हुए स्मूथ हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। आपके चीक्स, आपके गाल, उन्हें लूज छोड़ दीजिए, उन्हें ड्रूप होने दीजिए, उन्हें रिलैक्स होने दीजिए। आप अपने जॉ को रिलैक्स कीजिए, इजी छोड़ दीजिए। आप धीरे धीरे महसूस करिए कि आप अंदर से शांत महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपकी जो भी कोई चिंता, परेशानी है, सबको आप हटाकर अपने आप से जुड़ रहे हैं। इस वक्त सिर्फ आप हैं जो कि खुश है, टेंशन फ्री है, रिलैक्स्ड है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त आपको परेशान कर सके। अपने गर्दन को, अपने कंधों को रिलैक्स कीजिए, अपने गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने कंधों को रिलैक्स छोड़ दीजिए, उनको नीचे ढल के आराम से इजी छोड़ दीजिए। एक बार फिर एक गहरी सांस लीजिए, सांस को रोकिए, महसूस कीजिए और धीरे धीरे उसे छोड़िए। फिर से एक बार गहरी सांस लीजिए, सांस को होल्ड कीजिए,
शरीर को, शरीर के अंगों को इजी करते हुए, रिलैक्स करते हुए, जहां आप अपनी फेवरेट जगह पर अभी अपने मन से विजुअलाइज कर रहे थे, उस जगह से कनेक्ट होते हुए अपने आप को शांत करते हुए, अच्छा महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पाम्स, अपने दोनों हथेलियां साथ लाइए और उन्हें आपस में रब कीजिए और इन्हें अपनी दोनों बंद आंखों के ऊपर रख लीजिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को इन हथेलियों के बीच में खोलते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। इस फीलिंग को कैरी कीजिएगा, इसके अलावा मैं आपसे अभी और कुछ नहीं। ये जो फीलिंग है, कोशिश कीजिए कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, पर ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग को अपने साथ हमेशा रखिए। थैंक यू डॉक्टर नायक। We are done for today. That's really the ending one is something will give a very, very relaxed mind to all the educators, those who are, since morning there in some way or the other in online classes or some of the other classes. I believe these practically teachers need to implement. These strategies very, very effective. I believe few strategies also many a times I used to discuss in many seminars and workshops. And I think, the school leaders, specifically when I talk about so many teachers are there from DPS Gwalior, they might, you are absolutely very thankful to a speaker like that, a guide like that you have within you. And absolutely, ma'am, whatever suggestions, whatever the guidelines you have given to minimize the stress, I think that is absolutely wonderful and need to be implemented very practically. And generally, I have seen teachers, once they are in stress, they enter inside the school premises. They cannot properly judge children if at all you are stressed. So believe me, when you are stress-free, when you are away, as ma'am's story was there, the friend of ma'am used to keep all those things in the trees. Similarly, you need to enter something. I need also to plant a tree in front of my school so that when the teachers will come from home, they will keep all those things in the tree. Absolutely. So nicely you have said, and it is practical experiences. These are all, believe me, these are all practical experiences which ma'am has shared. I think we all learn it gradually. Yes. Yes. So, so nice of you, ma'am. It's so happy we are all. I think my teachers are so mesmerized, keeping sitting straight and giving a smiling face. When you smile, when you have become happy, I believe your happiness quotient in the school itself, in the teacher itself, it should become more so that you can spread happiness to your kids. When you interact with your kids in happily, if you share your learning, I believe the outcome, the learning outcome will be more than when you are in a stress. Generally people say, teacher, I'm a strict teacher. It's nothing like that. A strict teacher nowadays is not going to work because everything is available in Google. So you believe me, so these strictness will not have any impact. The knowledge, the best way you can connect children, the best way you can understand kids, the best way you can share the kids with stress-free mind, I think that will give a best thing for
all the teachers to what we have learned today. Thank you very much, ma'am. It was so nice of you to have you today, and hopefully I'll be calling you back to my school once to have an entire day session, so that all will be connected very nicely to you and to all the ethics which you have spoken. So once again, my sincere gratitude, humble gratitude to you, accepted my invitation with a one shot, one request. And I think thanks to all the educators, they were so happy. You were all happy to see ma'am, speaking to you. Even CU might be speaking regularly in your school in front of you, but now when you talk in an online basis, that also gives some pleasure to all of you. I think I can create that pleasure, happiness surrounding to all of you. For that, I may be thanked for that. So thank you, ma'am. It's for so wonderful to remain connected. And on behalf of my management, my entire team, I pay my regards to you. Thank you very much. Namaskar. Stay Namaskar. safe, stay happy, stay healthy. So nice of you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. So much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Mr. Nayak, ma'am. honestly speaking, Thank you, ma'am. we practice these things, they make us also feel better. So thank you to Absolutely. you also. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. ma'am. Yes.